Hi everyone, good evening. This is CA Madhu Thakuria. Guys, I feel really happy and grateful to all of you for being connected with me in my WhatsApp community and also through this YouTube channel for so long. It's been uh, over 2 months now since you and I are connected in this channel, and how you are feeling. You feel that I can help you with your studies with my strategies, and you decided to stay connected. That gave me the confidence and also a motivation to stay. To continue my journey on YouTube. um, through While we were actually sailing through this journey for your May 24 exams, a lot of you have even requested whether I can teach the subject of auditing, because the primary reason for you to come in this channel was one of my audit strategy video, which actually received a lot of love from all of you, because there was 2-3 पेन पॉइंट्स रिलेटेड टू योर ऑडिट सब्जेक्ट जो मैंने उस वीडियो पे हाईलाइट किए. एंड आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू लाइक हाउ टू ओवरकम दैट सो दैट you can actually clear your whether it is CA inter group 2 or your CA final group 1. For most of the kids, I know that particular subjects become a hindrance when it comes to clearing the entire group with good marks. So while I was helping you also, a lot of students also told me whether I can prepare this subject and actually can teach, and that gave me the motivation of actually launching my own course. So I am deciding to I have decided that I will be taking a full course for CA inter auditing as well as CA final auditing and assurance. So I am starting with CA Inter Audit first. My course will be launched from 10th of June. The classes will start from 10th of June. And in this video, I will be sharing the entire details of this course, uh, especially for CA inter auditing. Now, before I go into sharing a lot of details with you, I once again want to thank everyone for actually helping me, trust myself. Whether it was a big decision for me to decide whether I can actually teach and spend like every day 4 to 5 hours with all of you. But again, I know for sure that you guys have given me so much of love as of now, and I continue to receive that. So I definitely think that you will continue to support me in this journey. And with your because of your support, I'll make sure that I deliver a very high quality classes to you, knowledge base basically. And I'll also not just help you do your classes or cover the subject. I will also make sure that all of you clear your exams with me. So there is a lot of details about the community and everything that I'll share later on. Let's get started with your classes details. So before I jump into the batch ka details, let me tell you, give you a brief of how your syllabus looks like. So in your syllabus you have around 11 chapters, starting from your nature, objective and scope of audit till your ethics and terms of audit engagement. Now with these 11 chapters, you actually learn a journey of how of being an auditor, which is great. At least at the CA inter level, I feel this subject introduction itself builds the foundation of you becoming a chartered accountant. So I absolutely love the way this course is designed, especially the auditing course is designed. So we will be completing all these 11 chapters thoroughly. No fast track, no just no there is no intention of just covering the subject like that, in a fast track manner, and suffering later. No, we are going to thoroughly do this in 11 chapters. Along with that, you have around 27 standards, including one standards on the quality control. So you have standards on auditing, and then you have one standards on quality control. Along these chapters, we will cover those standards as well.
Now when we thoroughly read this subject, we will also make sure that in the class itself you get the opportunity to solve all the questions along with me. Very important. I can't insist this enough or emphasize this enough. In my videos, strategy videos, I have always told you guys, and I still till this day every day remind students to start solving question papers, start doing the questions. It is very important. Whatever the concept you have learned, you should be having the habit of applying those concepts in form of the questions that you get from ICAI. Very important. So we will be doing approximately for each of these chapter you have around 20-25 questions in your past RTPs, MTPs, and your question papers. So we will make sure that we are covering those questions in the class itself, and you will have around 500 questions in this entire course duration. But ho jayega, easy hai, ho jayega. Then you have around 300 plus MCQs. Those are also coming from ICAI material only. So there is nothing that I have designed on my own. I didn't have a lot of time, and I honestly trust a lot. I trust ICAI a lot, so I believe like उनका material पढ़ के जाएंगे अच्छे से तो नैया पार हो जाती है. So I will be taking that as a base only for you guys. ठीक है? Now uh, about the batch. So our batch will start from 10th of June. 10th of June से बैच स्टार्ट करेंगे. टारगेट है 2 मंथ्स के अंदर बैच कंप्लीट होना चाहिए. 10th of June से 10th of July, 10th of July से 10th of August तक. However, I have kept myself as a target. I have given myself a target of 31st of July. थोड़ा जल्दी कवर करेंगे तो क्या होगा, रिवीजन का टाइम उससे ज्यादा मिलेगा, जो कि रिवीजन मैं ही आपका लेने वाली हूँ. सो थोड़ा मैंने अर्ली टारगेट दिया है, बट अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हैं 10th of August तक हम पूरा का पूरा थॉरली आपका बैच कंप्लीट करेंगे. ठीक है? उसके बाद क्लास का ड्यूरेशन क्या होगा. सो बिकॉज आई हैव टोल्ड यू दैट आई विल बी डूइंग concepts along with your questions and answers, which is the most important part कि डेली बेसिस पे आपके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड. सो अप्रोक्सीमेटली 2 hours वी विल स्पेंड ऑन लर्निंग द कंसेप्ट्स. ठीक है? आपके जो चैप्टर्स हैं वो पढ़ेंगे, वो क्या स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं या क्या स्टैंडर्ड के बारे में आपको समझा रहे हैं वो पढ़ेंगे. एंड बचे हुए टाइम में मतलब 1.5 hours एवरी सिंगल डे वी विल स्पेंड ऑन डूइंग द क्वेश्चन एंड आंसर्स. बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरा सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के टिक लगवा देना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका एट द सेम टाइम अंडरस्टैंड करना कि वो क्वेश्चन का आंसर कैसा होना चाहिए, फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, इंस्टीट्यूट किस तरह से लिखती है, हमको प्रोफेशनली आंसर कैसा देना चाहिए, सो दैट वी गेट द मार्क्स इजीली. राइट? ये सब वे स्ट्रैटेजीज जो है मेरे खुद के स्टडीज के टाइम पे मैंने फिगर आउट कर ली थी. दैट इज व्हाई आई वाज एबल टू स्कोर गुड, एंड ऑडिट बिकेम वन ऑफ दो सब्जेक्ट जिसकी वजह से मैंने पूरा ग्रुप निकाला है, एंड नॉट द सब्जेक्ट जिसकी वजह से मैं ग्रुप नहीं निकाल पा रही हूँ. आई मेड श्योर कि मैं अपने पेन पॉइंट को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लूँ, एंड आई हैव डन दैट. ठीक है? सो 2 hours फॉर योर कंसेप्ट एंड 1.5 hour फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर्स वी विल डू ऑन अ डेली बेसिस. टाइमिंग बता देती हूँ क्लास का टाइमिंग 3:30 PM से 5:30 PM हमने रखा है कंसेप्ट्स के लिए, एंड 6 PM से 8 PM तक वी विल डू क्वेश्चन एंड आंसर्स. अभी थोड़ा बफर में ही टाइम रखा है, डिपेंडिंग ऑन आप लोगों का एनर्जी कैसा है उस दिन, मेरा एनर्जी कैसा है, कि किसी दिन ज़्यादा कम भी हो सकता है क्लासेस. बट ये कि कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास एग्जाम्स आपके जस्ट पास में अभी सितंबर में, तो थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेने का कैपेसिटी हमारे पास है नहीं. थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा तो कर लेंगे, बट एटलीस्ट आपका कंसेप्ट एंड क्वेश्चन आंसर्स क्लास में कंप्लीट होना चाहिए. दैट इज वॉट आई पर्सनली बिलीव. देन मोड ऑफ डिलीवरी क्या होगा. सो आपके जो क्लासेस है ना, वो क्लासेस हम जूम के थ्रू लेना पसंद करेंगे. रीजन बीइंग बहुत सिंपल है, 2 वे इंटरेक्शन होना चाहिए. एंड 2 वे इंटरेक्शन में ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बोल पा रही हूँ और आप चैट पे लिख पा रहे हैं, नहीं. फॉर मी बीइंग अ न्यू टीचर एंड एजुकेटर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट माय स्टूडेंट फील अबाउट द क्लास, whether they enjoyed the classes and enjoyed in the sense they learned anything from the class, whether I was able to teach you the concepts in a right manner, आपको उतना ग्रास्प हुआ. ये दोनों चीजें 2 वे कम्युनिकेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज व्हाई आई हैव चोजन Zoom as a platform where we can take classes, so that you can just unmute yourself and ask me questions right away. बहुत हम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है.
again. So if we are taking Zoom classes, will you get any you may ask question कि आपको recorded backup मिलेगा क्या? रीजन बीइंग कुछ बच्चे क्लास नहीं अटेंड कर पाए या बाद में भी देखना चाहते हैं, क्लास हो भी क्या लेकिन रिवीजन के लिए देखना चाहते हैं, तो यस 100% आपको क्लासेस का बैकअप मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगा, एंड विथ नो लिमिटेड व्यूज और एनीथिंग। आप यू डिजर्व टू लर्न थॉरली, एंड आई बिलीव दैट कि आपको वो अनलिमिटेड व्यूज के साथ में अच्छा खासा वैलिडिटी के साथ में आई विल प्रोवाइड यू द क्लासेस विद द गोल कि आपको जितनी बार रिवाइज करना है आप वो रिकॉर्डेड क्लासेस के थ्रू रिवाइज कर सके। ठीक है, now one more thing that for you to trust any teacher is very important. I tell this to students, you should be always able to trust your teacher, क्योंकि आप क्लासेस ले लेते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं। ठीक है, अभी पैसा खर्च कर देने के बाद में भी मैंने बच्चों को देखा है कि वो क्लासेस पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं करते हैं एंड जाके यूट्यूब रिवीजन वीडियोस के थ्रू यूट्यूब में अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं। गलत नहीं है उसमें कुछ, लेकिन आपने एक एम्पल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड किया है आपके क्लासेस में। ठीक है, so you should be able to utilize the time that is being invested by your teacher and also by you, very important। ठीक है, सो आई बिलीव कि आपको मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स दूं, लेकिन आई ऑल्सो बिलीव कि आप मेरे साथ क्लास में भी उतना ही एंथुजियाज्म के साथ में, इंटरेक्शन के साथ में पढ़े, एंड आई विल कीप ऑन इंसिस्टिंग एट दैट पार्ट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं सिर्फ आपका एग्जाम्स नहीं देखती हूँ, मैं आपका करियर भी देखती हूँ आफ्टर यू बिकम सीए। आप जितना भी वोकल रहेंगे अपनी चीज़ों को लेकर के, जितना भी आप डाउट्स पूछ सकते हैं, क्यूरियोसिटी रख सकते हैं सब्जेक्ट मैटर के बारे में, उतना ही अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी आप एक्सेल करेंगे। सो आई सी the future, your future beyond your exams as well, that is why I insist कि टू वे इंटरेक्शन होना चाहिए क्लासेस में। क्लासेस का रिकॉर्डेड वर्जन भी आपको मैं डेफिनेटली प्रोवाइड करने वाली हूँ। ठीक है, एंड विथ अनलिमिटेड व्यूज, कोई उसमें व्यूज का अपने पास में ये नहीं है, लिमिटेशन नहीं रहने वाला है। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चंस का डाउट सेशन के बारे में है कि कोई अलग से डाउट सेशन, तो देखिए डाउट सेशन का क्या है, मैं बिलीव करती हूँ कि मैं डेली ही अगर आपको थोड़ा सा एक्सटेंडेड टाइम देने लगूँ तो क्लास के डाउट्स आप सेम डे में भी पूछ सकते हैं मुझे, एंड उसके बाद में वी विल डू रेगुलर डाउट सेशंस ऑल्सो। सो उसमें क्या है, आप आओ मेरे साथ में, क्लास ज्वाइन करो, क्लास में खुद को अनम्यूट करो और बिंदास आप सवाल पूछो, जो भी सवाल पूछना है आप पूछो, मैं हेल्प करूंगी कि आपका डाउट वहां पर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सो एकदम एक्सटेंडेड क्लासेस करने के लिए मैं रेडी हूँ, ताकि आप आओ और आपके डाउट्स क्लियर करो। तो उसमें आपको बिल्कुल भी संकोच रखने की जरूरत नहीं है, या फिर ये सोचने की जरूरत नहीं है कि यार पढ़ तो लेंगे फिर डाउट्स का क्या, बाद में क्वेश्चन आएंगे तो क्या। जब तक आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो जाते हो, मैं बैठी हुई हूँ आपके लिए। वंस यू अनरोल्ड फॉर माई क्लासेस, आई टेल यू, सी व्हेन आई से कि अनलिमिटेड व्यूज है, ये सब क्लास को बेचने का टेक्टिक नहीं है मेरा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट रहता है, एक बार जो बच्चा मेरे पास आ गया ये बोलने के लिए कि मधु मैम आप मुझे पढ़ा दो, या फिर आप मुझे गाइड कर दो मैं कैसे सीए बनना है, जिस दिन वो बच्चा आता है ना, उस दिन से वो बच्चा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। एंड मैं मेक श्योर करती हूँ कि उन बच्चों को एजुकेशन वाइज जितना भी बेस्ट क्वालिटी अपने नॉलेज बेस के हिसाब से जो वो डिजर्व करते हैं वो मैं दूं। एंड सेकेंडली, अदर देन क्लासेस ऑल्सो, आपको जो भी हेल्प लगेगा इन टर्म्स ऑफ क्लियरिंग अदर सब्जेक्ट, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग सम मोटिवेशन, गाइडेंस, आई एम ऑलवेज देयर। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट के डाउट सेशन नहीं होगा, पूछ नहीं पाएंगे, ये सब ऐसा कुछ मेरे क्लासेस में तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नाउ अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, नोट्स का क्या। ठीक है, सो नोट्स में आई पर्टिकुलरली बिलीव, क्योंकि अभी आपका सिलेबस पूरा 100% सब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है प्लस उसके बाद में आपको 30 मार्क्स का एमसीक्यू भी देना पड़ता है। अभी एमसीक्यू का ना कुछ फिक्स्ड वे नहीं होता इंस्टीट्यूट का पूछने का, दे कैन आस्क फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ योर बुक। ठीक है, ऑफ योर बुक मतलब बेसिकली आईसीआई का मॉड्यूल, वो आईसीआई को अपने मटेरियल से बहुत प्यार है, अभी नहीं सालों से सुनते हुए आ रही हूँ मैं, ये जब से मैंने मेरा जर्नी चालू किया था उसके पहले मेरे सीनियर जूनियर सब ये बोलते हैं इंस्टीट्यूट को उसके मटेरियल से बहुत प्यार है। तो ये बात हम जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतना ईजी हो जाएगा हमको सीए करियर में सर्वाइव करना। जब तक मैं भी एज अ रेबल बन रही थी मुझे भी बहुत तकलीफ हुआ था सीए पास होने के लिए, जब मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई ओके ठीक है तुम्हारा ही मटेरियल पढ़ के आएंगे, आई कुड क्लियर इट। ठीक है, मतलब इग्नोर नहीं करना है उनके मटेरियल को। तो अपने लिए नोट्स का जो प्राइमरी बेस बनेगा ना वो आईसीआई का ही मॉड्यूल बनेगा। ठीक है, मैं उनका ही मॉड्यूल स्क्रीन पे लेने वाली हूँ, उसमें से क्या पोर्शन पढ़ना है वो मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, उतना ही पोर्शन अपन पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे जिससे अपने कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद में आई विल प्रोवाइड यू माई
ओन कंसेप्ट नोट्स ऑल्सो। सो मैं सेम आईसीआई का मॉड्यूल रेफर करूंगी, साइड बाय साइड अपने कंसेप्ट नोट पे रेफर करूंगी। बहुत सिंपल है, आईसीआई का मॉड्यूल जो रहता है ना वो बहुत वॉल्यूमिनस भी होता है, उसमें बहुत सारा ऐसा कंटेंट लिखा रहता है जो रिलेवेंट नहीं होगा, रिपीटेड मोड में हो सकता है, तो वो सारी चीजें हम एलिमिनेट करेंगे। साइड बाय साइड मेरे कंसेप्ट नोट्स फॉलो करेंगे। मेरे कंसेप्ट नोट्स में क्या रहता है, मैं भी कभी भी किसी भी टॉपिक को पढ़ती हूँ ना तो उनको मैं ब्रेक डाउन कर देती हूँ पॉइंट वाइज। मैं क्वेश्चंस को फ्लो चार्ट के बेसिस पे डिजाइन कर देती हूँ। एक स्टोरी फॉर्म में आपको डिजाइंड नोट्स मिलेगा, और वो हर एक चैप्टर पढ़ने के पहले या हर एक क्लास पढ़ने के पहले मैं आपको वो नोट्स प्रोवाइड कर दिया करूंगी। सिंस बिकॉज क्लास कर लेने का डिसीजन और क्लास लेने के बीच में बहुत ज्यादा ड्यूरेशन नहीं था, तो मैंने आप लोगों का अटेम्प्ट को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड किया कि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रेच करके अपने डेज को नोट्स प्रिपेयर कर लिया करूंगी आपको क्लास पे देने के पहले। ठीक है, ताकि आप क्लास में आओ तो मेरे कंसेप्ट नोट्स आपके हाथ में होने चाहिए। ठीक है, आईसीआई का मॉड्यूल तो आपके पास में होगा ही होगा। तो पॉइंट वाइज आपको चीजें याद रखनी है, फ्लो चार्ट के वो वे में आपको समझ में आना चाहिए। मैंने जो ऑडिट स्टडी करने का स्ट्रैटेजी बताया था, सेम उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये आपके एक कंसेप्ट नोट्स मैं डिजाइन कर रही हूँ, और वो कंसेप्ट नोट्स के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि आपका कंसेप्चुअली आप कहीं पर भी वीक नहीं पड़ो। यू शुड बी एबल टू लर्न अलोंग विथ मी इन द क्लास इटसेल्फ। नाउ क्वेश्चन एंड आंसर्स का कैसा है, सब कंपाइलेशन जो है वो इंस्टीट्यूट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का होता है, आरटीपी एमटीपीस का होता है, नथिंग एल्स, राइट। एंड आपके मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस रहते हैं हम भी वही फॉलो करने वाले, नथिंग एल्स। आइडिया यही है कि जो कंसेप्ट लिखे हुए हैं ऐसे के मॉड्यूल में और जो क्वेश्चन आंसर्स है वो थरली हमारे करके जाने चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी कवरेज वहां से ही हो जाता है। मेजॉरिटी कवरेज बोला तो मोर देन 99% कवरेज जो आपके एग्जाम्स का है वो उसी मटेरियल से आने वाला है। तो जैसे हमने वो कवर कर लिया, वी विल बी वेरी वेरी सिक्योर कि बॉस अपन पास तो हो रहे। ठीक है, सो क्वेश्चन आंसर्स का भी जो सॉफ्ट कॉपी है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, नाउ एनी ऑफ दीज नोट्स अदर देन आईसीआई मॉडल जो आपके पास फिजिकल होगा, बाकी जो है वो मैं आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करूंगी। अभी अपना पब्लिकेशन प्रिंटिंग ये सब चीजों का सेटअप नहीं है, आप सॉफ्ट कॉपी से ही पढ़िए, आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप बहुत सारे टैबलेट यूज करते होंगे, फोन पे यूज करते होंगे, फिर उसके बाद में आप लैपटॉप्स हैं, आप वो सब रिसोर्सेज का इस्तेमाल करिए ताकि आप कंसेप्ट नोट्स के थ्रू गो थ्रू करेंगे। अच्छा, इसके अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मैं आपको ना दिखाती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ आपको जब मैं आईसीआई के मॉड्यूल से पढ़ने की बात करते हैं। मैं आपको दिखा रही थी कि फॉर एग्जांपल ये हमारा चैप्टर 1 है, नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। आप देखोगे चैप्टर नियर अबाउट कितना पेजेस है इसमें, इंक्लूडिंग द क्वेश्चन एंड आंसर्स, सम 41 पेजेस है, जिसकी वजह से हमेशा आईसीआई के मॉडल देखना बहुत बल्कि लगते हैं। ठीक है, तो मैंने किस हिसाब से किया है, आपको बहुत अच्छे से चैप्टर को पढ़ा है, चैप्टर को पढ़ने के बाद में समझा है कि इंस्टीट्यूट के लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है और कितना रेलिवेंट है, वो पोर्शन मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है, आप देखोगे यहाँ पर। ठीक है, मैं हमेशा हाईलाइट करती हूँ इस तरीके से। सिमिलर वे में मैं क्लास के टाइम पे ही आपको हाईलाइट करके दूंगी किस तरह के इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ सकता है वो पर्टिकुलर कंसेप्ट से, उसके पॉइंटर जो आपको लर्न करने हैं ये हम क्लास में खुद करेंगे साथ में। ठीक है, तो एट द सेम टाइम आप आपके मटेरियल को हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये करने के बाद में आपको एक चीज का श्योरिटी हो जाएगा कि मैंने इंस्टीट्यूट का मटेरियल इग्नोर नहीं किया है। मतलब आपने नहीं इग्नोर किया आपके प्रिपरेशन के टाइम पर, आपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल से ही पढ़ा है। साइड बाय साइड ये पढ़ने के बाद में, मतलब जैसे मेरे ये नोट्स है, आप अपने से खुद से भी साइड में लिख सकते हैं। आपके पास में फिजिकल मॉड्यूल होगा, आप उसमें साइड में खुद से लिख सकते हैं। जो भी आपको उस टाइम पे क्लास में पढ़ करके जो भी मैं कंसेप्ट का बैकग्राउंड आपको बताती हूँ, जिसके थ्रू आपको कंसेप्ट अच्छे से लर्न होंगे, वो आप लिख लेंगे। तो आप खुद भी जब रिवाइज करेंगे तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू एक्चुअली लर्न एंड अंडरस्टैंड ऑडिट। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल स्टडी। जो भी अननेसेसरी पोर्शन है वो मैं हटाने वाली हूँ,
और मैं आपको क्लियरली बताने वाली हूँ कि कौन कौन सा पोर्शन है। अभी मैंने कुछ कट नहीं किया है यहाँ पर, बट आई मेक श्योर कि क्लास में आपको बता दूं उस टाइम पे आप वो पोर्शन कट कर पाएंगे, जिस तरह से ये मैंने हाईलाइट किया कि ये पैरा नहीं जरूरत है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू व्हेन इट कम्स टू कि मॉड्यूल से हम किस तरह से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मॉड्यूल का कंसेप्ट बहुत कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। नाउ गोइंग बैक टू योर क्लास का डिटेल्स। ठीक है, अभी क्लास के डिटेल्स में ना हम कहाँ तक आ गए थे, हमने आपके मॉड्यूल्स कैसे पढ़ना है वो देख लिया था। अच्छा, मैं आपको अभी कंसेप्ट नोट्स का भी दिखा रही थी ना, कि कंसेप्ट नोट्स में भी मैं आपको बता देती हूँ जैसे क्वेश्चन आंसर्स का फॉर्मेट कैसा रहेगा, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। यस, सो दिस इज हाउ व्हाट आई हैव डन इज, मैंने यहाँ पर ना क्वेश्चन एंड आंसर्स का नोट्स बना करके प्रिपेयर करके रखा हुआ है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका चैप्टर 1 है, इसके अंदर से मैंने इंस्टीट्यूट के मटेरियल से क्वेश्चंस लिया है। जैसे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से लिया इंस्टीट्यूट के मटेरियल से। उसके अंदर क्या आंसर है, जो इंस्टीट्यूट का खुद का आंसर है वो मैंने यहाँ पर लिखा। इसी तरीके से मतलब इंस्टीट्यूट किस तरह से आंसर लिखना पसंद करता है, किस तरह से प्रोफेशनल वे में आपको प्रेजेंट करना चाहिए आंसर, वो भी आपको ये क्लास में पढ़ते पढ़ते ही आ जाएगा। इट्स नॉट लाइक कि आपको पूरा कंसेप्ट दे दिया, पीछे क्वेश्चन दे दिए, नाउ आप फिगर आउट करो कि आंसर कैसे लिखना है, नहीं। वो सेम टाइम पे आपको क्वेश्चन और उसका आंसर कैसा लिखना होना चाहिए वो मालूम होना चाहिए, सो दैट यू डोंट हैव टू डू योर वर्क। मतलब इतना क्लास करने के बाद में भी आपको अभी फिगर आउट ही करना है कि आंसर क्या लिखूं और इसमें क्या आंसर आएगा। जो मैक्सिमम बच्चों का प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम ही एलिमिनेट हो जाएगा अगर आपको क्वेश्चन एंड आंसर तुरंत मिलेगा तो। ठीक है, सो दिस इज, और ये भी हम क्लास में ही पढ़ेंगे, कि लाइन पढ़ करके समझ लेंगे, सो दैट जब आप खुद से भी पढ़े रिवाइज करें तो आपके लिए इजी होना चाहिए। क्लास करने का अल्टीमेट फायदा सेल्फ रिविजन इजी हो जाना चाहिए। सेल्फ पढ़ने के टाइम पे भी उतनी मेहनत करने पड़े तो यार फिर तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल कवर द क्वेश्चन एंड आंसर्स। नाउ लेट मी टेक यू टू व्हाट, हाँ, अभी स्कोप ऑफ क्यूमुलेटिव रिवीजन। तो यस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली थियोरिटिकल पार्ट है, नॉट समथिंग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ब्रेन स्टॉर्म करने की जरूरत है नहीं पड़ती है, राइट। ऑडिटिंग जैसे सब्जेक्ट में, एसएम जैसे सब्जेक्ट में ब्रेन स्टॉर्मिंग की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, डेली अगर अपन रिवीजन करेंगे, क्लास स्टार्ट होने के पहले आई रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड, क्लास एंड होने के टाइम पे भी हम एक बार थोड़ा सा ग्लिम्स ले लेते हैं, तो उससे क्या होगा, आप क्यूमुलेटिव वे में आप लर्न करते जाएंगे, कीवर्ड्स लर्न करते जाएंगे, की सेंटेंसेस लर्न करते जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, इज रियली इंपॉर्टेंट। मतलब इसका तो मैं इसके इंपॉर्टेंस पे ना बहुत एम्फेसाइज करती हूँ, और सभी करते हैं, लेकिन इट जस्ट कि हम थोड़ा सा ना इग्नोर करते हैं पढ़ने के टाइम पे, कि नहीं यार रिवाइज नहीं करते, नया 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 पढ़ते जाते हैं, फिर वो आगे पार्ट पीछे सपाट वाला हिसाब किताब होता है। सो लेट्स अवॉइड दैट। एटलीस्ट क्लास में कर रहे हैं तो प्रीवियस डे पे क्या पढ़ा है वो रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद में भी वीकेंड्स पे हम क्यूमुलेटिव रिविजन्स ले लेंगे, जूम सेशंस के थ्रू क्यूमुलेटिव रिविजन्स लेंगे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द क्लास ना, हाँ, मोड ऑफ डिलीवरी। तो जब मैंने आपको बताया था क्लासेस हम जूम के थ्रू करेंगे, टू वे इंटरेक्शन करेंगे। तो अभी आप देखो, आप मेरा क्लास ले रहे हो, आपको मालूम है फर्स्ट टाइम एजुकेटर है मैं सीए के फील्ड में, एंड देयर आर ऑलरेडी सो मेनी टीचर्स अवेलेबल, कॉम्पिटिशन आपके आपके पास है, आप ऑलवेज चूज कर सकते हैं किसी और दूसरे टीचर के पास में जाने के लिए। एंड आई नो, क्योंकि यू विल ऑलवेज थिंक ना कि व्हेन यू आर स्पेंडिंग योर मनी, इन्वेस्टिंग योर मनी फॉर योर एजुकेशन, आप बेस्ट टीचर से ही पढ़ना पसंद करेंगे। सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज, फॉर माय क्लासेस, एटलीस्ट फॉर माय स्टूडेंट्स, आई विल टेक योर चैप्टर 1 का क्लासेस स्टार्टिंग 10th ऑफ जून। ठीक है, हमारे रेगुलर क्लासेस चालू होंगे 10th ऑफ जून से, एंड 10th ऑफ जून से जो फर्स्ट क्लास चैप्टर रहेगा ना, दैट नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिटिंग, ये वाला पर्टिकुलर चैप्टर मैं आपको फ्री में पढ़ाने वाली हूँ। नो एनरोलमेंट रिक्वायर्ड। एनरोलमेंट कर लेंगे तो भी बहुत अच्छा है, नहीं भी करेंगे तो एक बात याद रखिए कि आपका मेरे ऊपर ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है बिफोर यू एक्चुअली डिसाइड कि मेरे साथ डेली बैठना है। क्योंकि इमेजिन आप लाइव क्लासेस में आकर के बैठे हैं, एंड यू आर नॉट आंसरिंग एनीथिंग, यू आर नॉट रेडी टू लिसन टू एनीथिंग, आप जस्ट बैठे हुए हैं, सो दैट आप वो किसी तरीके से वो 2-3 घंटे निकल रहे हैं।
सबके लिए वेस्ट है, यू नो, फॉर मी ऑल्सो इट इज वेस्ट, बिकॉज मैं आपका आवाज बार, आपका नाम बार बार बोलती रहूंगी, वेदर यू हैव अंडरस्टूड XYZ, वेदर यू हैव अंडरस्टूड, बट यू विल नॉट रिस्पॉन्ड, ठीक है, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर ही बिल्ड नहीं हुआ है, तो आप भी अपने तरफ से एफर्ट्स नहीं लेंगे चीजें समझने के लिए, एंड वो मेरे लिए बहुत डिस्करेजिंग हो जाएगा, प्लस आपका भी समय व्यर्थ होगा। तो अपन वो चीज अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं ना, मैं आपको चैप्टर 1 पूरा पढ़ा देती हूँ, मैं सारे बच्चों को ही पढ़ाने वाली हूँ जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन करेंगे, उससे एक क्लास किस तरह से चलेगा उसका टोन भी सेटअप हो जाएगा। एंड जब क्लास फर्स्ट क्लास खत्म हो जाएगा, सपोज 2 to 3 डेज में या 3 to 4 डेज में हम चैप्टर 1 कंप्लीट करते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी साथ साथ में कर लेंगे, तो यू विल गेट एन आइडिया ऑफ ओके 2 मंथ्स में ये कैसा चलने वाला है पूरा क्लास का शेड्यूल, ठीक है, आपको एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा मेरे ऊपर में। देन उसके बाद में आप चाहिए तो आप एनरोल कर सकते हैं। सो सेकंड चैप्टर ऑनवर्ड्स टिल 11th चैप्टर अलोंग विथ योर क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है वो मैं आपका, वो आप फिर एनरोलमेंट के साथ में कर लेते हैं, लेकिन फर्स्ट चैप्टर के लिए आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि थोड़ा सा ट्रस्ट करके सामने वाले के ऊपर आप, मतलब मेरे ऊपर आप क्लासेस एटलीस्ट अटेंड कर लीजिए, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑलवेज नीड टू ट्रस्ट योर टीचर, अदरवाइज फिर वो, मतलब आई हैव ऑल्सो यू नो इन्वेस्टेड माई मनी इन सम ऑफ द क्लासेस जहाँ पर जरूरत नहीं था, बिकॉज आई कुड नॉट ट्रस्ट द टीचर लेटर ऑन, तो मैंने ठीक से फिर पढ़ा नहीं वो, ठीक है। नाउ डाउट सेशन हो गया, नोट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्यूमुलेटिव रिविजन्स के बारे में आई हैव टोल्ड यू। देन कम्स माई सपोर्ट। अच्छा, इंपॉर्टेंट है, आपने क्लास खरीद ली है, क्लासेस करने के बाद में आप जूम लेक्चर्स में आकर के बैठ रहे हैं, आप नोट्स के साथ में पढ़ रहे हैं, लेटर ऑन आपको कोई भी सपोर्ट लगता है, टेक्निकल सपोर्ट तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होगा, आपको जरूरत भी होगा तो उसके लिए मैं हूँ, बट अदर देन दैट बी टिल द डे यू क्लियर योर एग्जाम यू ऑलवेज नीड सम मेंटोर, ठीक है। नाउ आप मेरे क्लास में, आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं या फिर आप मेरे यू नो अभी तक की कोई भी आपने इसके पहले भी वीडियोस देखे हैं, कहीं ना कहीं यू माइट बी नोइंग दैट आई मेंटोर CA CMA CS स्टूडेंट्स, एंड इट्स बीन अ जर्नी ऑफ 2 मंथ्स, बट मेरे पास एक बहुत अच्छे बच्चों का एक बहुत प्यारा सा कम्युनिटी है, मुझे उनको डे इन डे आउट पर्सनल वे में मुझे उनको मेंटोर करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। सो इमेजिन अगर आप मेरा क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको भी उतना ही सपोर्ट दूंगी मैं, उससे ज्यादा ही सपोर्ट देने वाली हूँ, नॉट जस्ट फॉर ऑडिटिंग का सब्जेक्ट, ओवरऑल मैं आपको मेंटोरशिप के लिए रेडी हूँ, रेडी इन द सेंस क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग इतना बड़े हैं, इतना मेच्योर है कि आपको ऐसे हैंड होल्डिंग बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट लगता है, डगमगा जाते हैं, गाइडेंस चाहिए रहता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार हमारे पास कोई है नहीं एंड हम साइलोज में हैं और हमको कोई हेल्प करने वाला नहीं चाहिए, आई एम देयर फॉर यू। सो डोंट वरी, माई फुल सपोर्ट, माई नंबर आई हैव मेड पब्लिक, माई ईमेल आईडी आई हैव मेड पब्लिक, इसी रीजन से कि व्हेन यू फील कि यार मुझे इस जर्नी में अकेले चलना पड़ रहा है एंड आई एम स्ट्रगलिंग, वो फेल पास के लूप में मैं फंसा हूँ एंड देयर इज नो वन टू पुल मी आउट ऑफ दैट, या फिर मुझे अकेले ही पढ़ना पड़ रहा है, ये वो फीलिंग नहीं होना चाहिए। आई पर्सनली बिलीव कि इतना प्यारा कोर्स है, अगर थोड़ा हंसते खेलते निकल जाए तो वो बहुत अच्छा होगा। सो आई विल मेक श्योर दैट माई सपोर्ट इज देयर विथ यू फुल टाइम, ठीक है। मेरा नंबर, मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, दिस इज माई नंबर, दिस इज माई व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक। ये जो फॉर्म है, ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेकर के आ जाऊंगी, इसमें इसका लिंक लेकर के आ जाऊंगी, सो दैट यू कैन ओपन एंड सी ऑल द डिटेल्स बाय योर सेल्फ इन फ्रॉम ऑन योर ओन ऑल्सो। नाउ ये व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मैंने क्यों दिया है? सो दिस पर्टिकुलर व्हाट्सएप कम्युनिटी इज नॉट जस्ट फॉर द क्लास का स्टूडेंट्स। मैंने जब मेरा गाइड बच्चों को गाइडेंस देना चालू किया था, सो दे वांटेड टू कम कंटिन्यू टू बी इन टच विथ मी, जिसकी वजह से मैंने व्हाट्सएप पे एक कम्युनिटी ही क्रिएट कर दिया था। अभी उस कम्युनिटी में मोर देन 800 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अलग अलग लेवल के CA CS CMA के बच्चे हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, उसमें सब रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में हैं। तो हम सब कोशिश करते हैं कि समहाउ वो स्टूडेंट पावर ऑफ कम्युनिटी कैसा होता है कि एक दूसरे के हेल्प से वी एक्चुअली अचीव अवर गोल्स, और हमको इतना हैवी भी नहीं लगे और हमको इतना अकेलापन नहीं लगे। सो वी ऑलवेज हैव समबडी हु कैन सपोर्ट अस, हु इज देयर टू मोटिवेट अस, और एक दूसरे को दे करके हम थोड़ा सा चैलेंज दे सके, फन वे में पढ़ाई कर सके। ये इस गोल से मैंने ये व्हाट्सएप कम्युनिटी चालू किया था। मोर देन 800 स्टूडेंट्स ने ट्रस्ट किया है, देयर एवरी डे वो बात करते हैं, एंड नॉट जस्ट पढ़ाई, हम उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आई हैव इनवाइटेड सम ऑफ माई friends who are doing very good in their careers with 10 plus years of in experience in big fours, uh,
they have come here to guide those 800 students also. I have done Google Meet with after inviting them. So students are actually getting support from me, not just for their studies and general guidance, for all their career also. Then I have invited my friend CA Twinkle Dikshit, who has come here and taught students about the power of LinkedIn, how they should utilize that platform for networking, how should they should work on their writing skills. So the journey in the WhatsApp come through the WhatsApp community is going beautifully. Then we have a group called Healthy Body Healthy Mind, जहाँ पर हमारा 5 AM क्लब चलता है सीए के बच्चों का, साथ में इंक्लूडिंग मी। हम 5 बजे उठते हैं, 5:30 बजे तक मेडिटेशन के लिए बैठते हैं। इट्स अ ग्रुप मेडिटेशन फॉर्म, बहुत अच्छा होता है। देयर इज सो मच दैट वी आर डूइंग, बट दिस इज ऑल पॉसिबल व्हेन यू आर ट्रस्टिंग मी। सो यू कैन बिकम पार्ट ऑफ दैट व्हाट्सएप कम्युनिटी, उसका भी लिंक दिया है यहाँ पर। नाउ कमिंग बैक टू क्लासेस अगेन, आपकी क्लासेस के साथ में आपका मॉक टेस्ट पेपर लिखना उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन इस पे भी एम्फेसाइज करने का मतलब मुझे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, ठीक है। तो हम मेक श्योर करेंगे कि जो आईसीआई के मॉक टेस्ट होते हैं वही आप लोग लिखो, एंड आई चेक देम माई सेल्फ। एंड उसके अलावा भी आप लोगों की डिमांड कैसी रहेगी कि नहीं चलो मधु या मधु मैम और करते हैं, अपन मॉक टेस्ट और ले लेते हैं, और लेंगे। आप जितना सामने से बोलोगे ना उतना मुझे करने के लिए मजा आएगा। आप बोलो मुझे कि और मॉक टेस्ट लेते हैं, और एमसीक्यू टेस्ट लेते हैं, करेंगे अपन बिंदास, एंड आई विल इवेलुएट देम पर्सनली, ठीक है। देन उसके बाद में सैंपल ऑफ नोट्स तो मैंने आपको दिखा दिया था। नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आप वन वीक का पूरा डेमो ले लेंगे मेरे से। चैप्टर 1 आपको 1 वीक करनी, 3 से 4 दिन में चैप्टर 1 अपन कवर करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर्स कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें आप अगर डिसाइड करते हो कि आपको एनरोल करना है, तो एनरोलमेंट का फॉर्म जो है वो मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगी। मैंने ऑलरेडी बच्चों के साथ पहले भी शेयर किया हुआ है, तो वो एक कर सकते हैं। एंड दूसरा आपको, हाँ मैं आपको बता दूं कि आप वहां पर सीए इंटर 20 सितंबर 24 जैन 25 क्लासेस का ये फॉर्म कुछ इस तरह से ओपन होगा आपका। ये लिंक के थ्रू मैंने जैसे स्क्रीनशॉट लगाया है, लेकिन ये लिंक के थ्रू भी आप ओपन करेंगे तो इसी तरीके से आपका फॉर्म दिखेगा, ठीक है। उसमें आप जाकर के ये क्लासेस सितंबर 24 जैन 25 दोनों के लिए है। एक्चुअली सितंबर वालों के एग्जाम जस्ट नाउ है, इसके लिए मैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रही थी कि उन बच्चों के ऊपर एम्फेसाइज कर रही थी, लेकिन जैन 25 के रिलेटेड भी कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स है जो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो ये फॉर्म पे जाएंगे, फॉर्म में सेम डिटेल्स जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है वो फॉर्म में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड उसके अलावा मैंने आपको पेमेंट का डिटेल्स दिया हुआ है यहाँ पर। पेमेंट आप क्लास का किस तरह से कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर वंस यू डिसाइड कि आपको एनरोल करना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि ऑडिटिंग सीए इंटर ऑडिटिंग एंड एथिक्स का क्लास जो है वो 4000 रुपीज पर स्टूडेंट है, ठीक है। देर इज नो लिमिटेशन टू कितने नंबर ऑफ क्लासेस, कुछ नहीं। वंस यू हैव एनरोल्ड, आप जब तक क्वालिफाई नहीं हो जाते हैं, मेरा क्वालिफाई मतलब सीए इंटर के स्टूडेंट सीए इंटर क्वालिफाई नहीं हो जाते हैं, दे विल ऑलवेज हैव द ऑफर से ज्यादा क्या बोलते हैं, एक्सेसिबिलिटी टू माई क्लासेस। एक बार आपने एनरोल कर लिया, आप क्लास में आकर के बैठिए। ऐसा मैं एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ, लेकिन क्या सीए का रिजल्ट है, लिमिटेशंस रहती हैं कुछ ऐसा, या फिर ऑडिट ही अच्छा चला गया लेकिन बाकी सब्जेक्ट में कुछ आपको दिक्कत हुआ, कभी ऐसा हुआ अटेम्प्ट नहीं क्लियर हुआ, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार अभी वापस मैं दूसरी क्लास खरीदूं क्या। नहीं, आप सेम क्लास में आके बैठिए। मैं दूसरे बच्चों के लिए जो बैचेस चलेंगे आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, और आप कभी भी मेरे पास आकर के वो क्लासेस ले सकते हैं। डेली बेसिस पर हम वो क्लासेस करने ही वाले हैं, तो देर इज नो टाइम लिमिट और व्यूज लिमिट टू इट, ठीक है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मैं दूसरा वीडियो लेकर के आऊंगी, तो क्लास का फीस जो भी रहेगा वो भी मैं दूसरे इसके थ्रू आपको बताऊंगी, मतलब वो वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगी। एसएम के मोर डिटेल्स, एंड ऑडिट एंड एसएम का कॉम्बो लेते हैं तो 6000 रुपीज में होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासेस डिटेल्स। ऑल आई कैन रिक्वेस्ट यू इज कि बिफोर एक्चुअली एनरोलिंग ऑल्सो यू कैन ज्वाइन the classes at least from 10th of June, and then you decide yourself whether you want to pursue this course with me, and then you can enroll and continue, ठीक है। बट मेरा एक ही प्रॉमिस रहेगा कि यार मेरा अगर कोई स्टूडेंट है, मेरे पास कोई बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, तो आई विल मेक श्योर दैट यू क्लियर दिस पेपर। एंड इतना ही मेक श्योर नहीं कि यू क्लियर दिस पेपर, इस पेपर की वजह से मैं आप पूरा का पूरा आपका ग्रुप निकलवा सकती हूँ। आई नो द पावर ऑफ ऑडिटिंग एज अ सब्जेक्ट। एक बार ये क्रैक हो गया ना, क्रैक इन द सेंस हाउ टू स्टडी एंड हाउ टू स्कोर, ये आपको क्रैक हो गया ना, आप आराम से पूरा ग्रुप निकलवा सकते हैं। मैंने भी वैसे ही किया था, मतलब आई स्कोर्ड 60+ इन माय सीए इंटर ऑन ऑडिटिंग, और उसके बाद मेरा जो ग्रुप इतने आराम से निकल गया था मैं आपको बता नहीं सकती। तो
I know those things, so that is why I feel very very confident when I tell this to you कि आप एक बार मेरे साथ पढ़ेंगे, I can guarantee you that you will clear this exam. ठीक है. So with that, I'll actually close this video. You have all the important details related to this class now. Let's join with me. I'll share the Google, I'll share the Zoom link, right? Zoom link of this class in the description box itself. ठीक है. एक या दो दिन में आपको आ जाएगा इसका, एक दो दिन मतलब 9th of जून तक मैं आपको लिंक दे दूंगी. मैं मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी आपको ये लिंक शेयर कर दूंगी जूम का जो क्लास के लिए होने वाला है. And I'll also post that link in the comment section of this YouTube video as well. So do join the class and then let me know whether you want to enroll for the classes. You can make the payment through the, by filling this Google form, and then I hope to see you all in the class. Hope we have a very fun journey. I would love to teach you. Like I personally feel that मुझे teaching का बहुत अच्छा लगता है करने के लिए, but I'll also make sure that you are clearing your exams at the right time as well with me. So with that, we can close the video, and thank you so much for staying here and listening to me, and hope to see you all very soon. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Bye everyone.